this is Manara Chopra, Tollywood and Bollywood star. This is a shout out for Reva Kumar, who is a specialist from the past 35 years in Vastu Shastra. She is an amazing Vastu consultant for home, businesses, offices and corporates. She has just amazing sense where she can actually judge the negative and positive things happening in the building as well as in the human body. This is so amazing. And she has got these amazing remedies where you can actually cure the problem using scientific methods without even considering to demolish the structure. I strongly recommend that you guys should be like consulting her for wealth, happiness, prosperity and whatever questions you have in your head in regard to your future or whatever happening. Specializes in healing spaces with Vastu and living in harmony with earth. So what are you waiting for? Just go and consult Reva Kumar and get rid of all your worries. Vastu is Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Introducing Reva Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Our lives were really hectic. We just had no positive energy in our house. Yeah, we were looking for some guidance to take our family into the right direction. Reva came into our house and actually helped us bring in more positive energy into our home. And as a result, Roberto got a new job with great benefits, and we've been a lot happier since then. It's been great meeting Reva and helping us bring more positive energy to our whole family. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Radio Zindagi के amazing listeners, a very, very, very good morning to all of you. जी हाँ, right here, right now, we are having this amazing show जिसका नाम है Morning Tea with Reva Kumar. जी हाँ, morning कुछ ऐसा ही है कि चाय में चुस्की लेने का दिल हो रहा है, right? और इसीलिए तो हम लेके आते हैं this amazing show on Vastu because Reva ji is the founder of Divine Vastu Consultation and Research Center, which is now the world of Divine Vastu. तो चलिए बातें करेंगे रेवा जी के साथ और खूब सारे बातें करेंगे बिकॉज नवरात्रि का सीजन है एंड देन यू नो दैट वास्तु कैन एक्चुअली चेंज आवर लाइव्स इन सो मेनी वेज, राइट? तो रेवा जी के बारे में आप सभी को पता है, फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि if you want to know more and more about Vastu and Reva Kumar, then जरूर चेक करें worldofdivinevastu.com. अगर आप फोन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338 और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो इट इज divineavc@gmail.com. जी हाँ, शी इज एन ऑथोरिटी ऑन वास्तु फॉर द लास्ट 34 years of experience और innumerable followers है वर्ल्ड वाइड. क्यों? बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन बेनिफिटेड बाय हर. इसीलिए तो हम बातें करते हैं रेवा जी से और बातें करेंगे अबाउट वेरियस थिंग्स टुडे. पर सबसे पहले विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट मी वेलकम रेवा कुमार. रेवा जी, वेलकम टू मॉर्निंग टी विथ रेवा कुमार.
जी हाँ, गुड मॉर्निंग रेनी। हमारे जो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। हाँ, मॉर्निंग टीम में आपका वेलकम है, क्योंकि ये समय होता है हमारा आपके साथ, जहाँ पर होते हैं आपके सवाल और वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु के होते हैं जवाब। कई बार रीनी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत क्वेश्चन होते हैं जो हमारे मन में ही होते हैं। हम सोचते हैं वो कब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, या कैसे प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम कैसे घिरे हुए हैं। जी हाँ, ये तो लॉट्स ऑफ टाइम या होता ही है, या ह्यूमन बीइंग तो मन में होता है। लेकिन अपने लिसनर्स को कहना चाहती हूँ कि एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग अ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो भगवान प्रॉब्लम ही नहीं देते। वेरी वेरी ट्रू रेवा जी। और नवरात्र का सीजन है, हम हमेशा सोचते हैं कि अब तो कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे जिंदगी में, पर हमेशा हमें लगता है कि समथिंग बिग नीड्स टू बी डन फॉर दैट। पर आप हमेशा कहते हैं कि छोटे छोटे चीजें जो है वो घर में हम चेंज कर सकते हैं एंड देन वी कैन गेट द वास्तु रिजल्ट्स। तो ऐसा ही एक सवाल मेरे दिल में है आज, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी सारे लोग वो हमेशा कहते हैं कि जो डायरेक्शंस है, और आप भी कहते हैं कि डायरेक्शंस का बहुत ज्यादा प्रभाव है हमारे जिंदगी में, पर ऐसा भी एक डायरेक्शन है जिसके बारे में हमेशा हम बातें तो करते नहीं हैं, और वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आप हमें बताएं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ दैट डायरेक्शन, और हमारे जिंदगी में कैसे इसका इफेक्ट होता है। आज का आपने टॉपिक बहुत ही अच्छा लिया है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जिसको एज पर वास्तु प्रिंसिपल देखें, नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर आता है उसका डिग्री रेशो आता है दैट इज अबव 290। 290 से आप ले सकते तो 320 तक में हम नॉर्थ वेस्ट को काउंट करते हैं। अब ये सबसे पहले तो ये देखिए कि नॉर्थ वेस्ट का हमारा एलिमेंट क्या है, इसका प्लैनेट क्या है। जब नॉर्थ वेस्ट का एलिमेंट देखते हैं तो एयर एलिमेंट है। प्लैनेट इसका क्या है, मून प्लैनेट। मून प्लैनेट क्या है कि जो आपकी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार आप देखते हैं कि आप अपने आप को बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, या इवनिंग होते ही आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक डर के साथ में एक डिप्रेशन में लेकर आ जाते हैं, या इमोशनली कई बार बोलते हैं ना कि बेवजह रोने को मन करता है, हर वजह आपको एक फीयर लेते हैं, या आप अपने सिबलिंग से, अपने सिस्टर ब्रदर के किसी डिस्प्यूट के अंदर में हैं, या अगर आपको सोशल सपोर्ट की तरफ से कई कमी हो रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, सोशल सर्कल के बीच में आप मूव करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, आपके पेरेंट्स आपके पास में रह रहे हैं, आप उनकी बहुत बहुत उनकी केयर करते हैं, बट देयर बेडरूम इज इन नॉर्थ वेस्ट, और फिर भी वो आपके साथ रहना नहीं चाहते आपकी उनकी केयर करने के बाद में। या नेक्स्ट कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है, तो आप भी अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अगर ये सब इश्यूज हैं तो इट मीन्स देयर इज सम डिफेक्ट इन नॉर्थ वेस्ट को, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का जो प्लैनेट है वो मून प्लैनेट है। मून प्लैनेट आपके हेड के साथ में आपकी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने सब आपसे जिक्र किया है। अब लेते हैं पहले हम मास्टर बेडरूम को। अगर मास्टर बेडरूम आपका नॉर्थ वेस्ट होता है लिसनर्स, तो आपको क्या होता है, इमोशनली आप अपने आप को बहुत डाउन पाते हैं, या आप अपने देखेंगे कि आप आगे लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ अगर आपका मेन एंट्रेंस तो नॉर्थ वेस्ट को फेसिंग है, वो आपको पैसा तो देगा लेकिन आपको स्टेबल नहीं देगा। आप या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ज्यादातर 90% आप घर से बाहर ट्रेवल करते रहेंगे, आप घर के अंदर नहीं रहेंगे। दीज आर द इश्यूज, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा बाहर रखेगा। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखते हैं कि आपका लेवल, फ्लोर लेवल इज लोअर देन साउथ ईस्ट, या दूसरे लेवल से ज्यादा लोअर है, या अगर आप कह सकते हैं कि वहां पर वाटर पिच है, पानी की आपने कहीं पे भी रास्ता दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट को, तो वहां पर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड है, वो कॉर्नर आपका जैसे कि कई बार देखते हैं कि उस डिग्री से एक्सटेंडेड होकर नॉर्थ वेस्ट को एक्सटेंडेड होकर जैसे नॉर्थ आपका मिसिंग हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपको जॉब से जुड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको कोई लिटिगेशन में आएंगे, आपको अपने सिबलिंग्स के साथ में कोई इश्यूज आएंगे, आप चाह कर भी सोशल सपोर्ट को नहीं ले पाएंगे।
ये सारे डिफेक्ट्स जो होते हैं ये आपकी लाइफ में इफेक्ट करते हैं क्योंकि वो मून प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके पेरेंट्स हैं वो आपको स्टेबल नहीं आप हो पाएंगे अगर आपके पेरेंट्स इन-लॉज होते हैं। हाँ, नॉर्थ वेस्ट का फायदा भी है। नॉर्थ वेस्ट का फायदा है अगर आपकी न्यूली मैरिज हुई है, न्यूली वेडिंग कपल है, तो अगर आप बिगिनिंग में नॉर्थ वेस्ट बेडरूम को यूज करते हैं तो आपके लव लाइफ को इनहेंस करता है। या जिन लड़कियों की मैरिज डिले हो रही है या लड़कों की मैरिज डिले हो रही है या मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो नॉर्थ वेस्ट बेडरूम को यूज करें, वहां उनको बहुत हेल्प करेगी। जॉब के ऊपर में अगर आप देखते हैं कि आप सेल्स के साथ में जुड़े हुए हैं, सेल्स के साथ में आप कहीं पे भी आप कह सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ के नॉर्थ की तरफ फेस करके अगर आप कोई भी अपने प्रोडक्ट को निकालते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ग्रोसरी स्टोर्स हैं, खास तौर पर उनके लिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, अगर नॉर्थ वेस्ट में ग्रोसरी स्टोर फेसिंग होगा तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत 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 अच्छी सेल होगी। और अगर आपका किसी वजह से नॉर्थ वेस्ट फेसिंग नहीं है तो देयर इज नो इशू, यू कैन प्रूव दिस एयर एलिमेंट एनर्जी इन दैट ग्रोसरी कन्वीनियंस स्टोर टू। उसके लिए क्या है, खास तौर पर वेजिटेबल्स, बिकॉज द वेजिटेबल्स आर दी थिंग्स कि जो वो खराब हो जाती है अगर वो टाइम से उसकी सेल नहीं हो, तो उन प्रोडक्ट को हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरेंज कर देंगे। तो इस तरह से ये सब चीजें होती हैं कि जो हमने एयर एलिमेंट को इनहेंस करना है। बहुत देखती हूँ कि बच्चे अगर नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में या नॉर्थ वेस्ट में उनका स्टडी रूम होगा तो कभी भी वो कंसंट्रेट नहीं करेंगे। वहां पर बच्चों को अगर कहीं बेडरूम मिल जाता है नॉर्थ वेस्ट को तो दे विल हैव इश्यूज, उन्हें साइनस की प्रॉब्लम या ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं क्योंकि वो एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। तो अगर आपके बच्चों को कोई ऐसा इश्यू है या अगर आपको कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या ऐसा ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, देन यू शुड अवॉइड व्हाइल स्लीपिंग इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। हाँ, दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट का फायदा एक और भी है कि अगर वहां पर आप देखते हैं कि अगर आपके बच्चे किसी भी म्यूजिक लाइन में जा रहे हैं, जैसे कि पियानो प्ले करते हैं, कोई गिटार सिस्टम या म्यूजिक क्लासेस ले रहे हैं या उनका प्ले रूम बनाना है, तो नॉर्थ वेस्ट बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। वहां पर अगर आप प्ले रूम बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। सेकेंडली, नॉर्थ वेस्ट में कभी भी आप अपनी वैल्यूएबल्स मत रखिए। मैंने रिसेंटली भी एक जगह पे विजिट किया और यही देखा कि नॉर्थ वेस्ट में वो अपना सब ज्वेलरी, अपना मनी रखते थे, पता ही नहीं जा रहा था कि कहाँ जा रहा है। शी वाज सो अपसेट कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरा सामान कहाँ खो जाता है। बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज एयर एलिमेंट, वो आपका सब कुछ निकालेगा। लेकिन अगर आपके कोई बिल्स हैं या अगर आपके कुछ लिटिगेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं और मेडिसिन विच यू डोंट वांट टू यूज, या आप ऐसे ही एक्स्ट्रा मेडिसिन है, लेट इट बी इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। लेकिन वहां पर आप अपनी वैल्यूएबल्स को या अपनी ग्रोथ की चीजों को वहां न रखें। ओह माय गॉड, अभी तो मुझे लगता है कि ये जो दिशाएं होते हैं इनके बारे में हमें कितना कम पता है। और लिसनर्स, आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो चीजें हैं ये हमारे लाइफ में छोटे छोटे सी चीजें हैं, हम अगर इम्प्लीमेंट करें तो फिर जैसे कि रेवा जी ने कहा कि नॉर्थ वेस्ट में आप पैसे मत रखिए, या फिर अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वहां पे आप घर बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट हमें पता ही नहीं था। और इसीलिए तो लिसनर्स, हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि वास्तु से आपके जीवन में कोई भी लाइक थोड़ा से ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशी आए, तो फिर जरूर आप कांटेक्ट करें विथ रीवा कुमार। worldofdivinevastu.com जरूर चेक करें, बिकॉज यू विल गेट सो मच इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट रीवा कुमार बट ऑल्सो अबाउट वास्तु इटसेल्फ। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो फिर नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। यस, जो लिसनर्स ईमेल करना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूं कि divineavc@gmail.com में आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो हम बातें कर रहे हैं रेवा कुमार के साथ, और वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु आप सभी जानते हैं, इसीलिए तो हम वास्तु के बारे में बातें करते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग को। अगर आपको कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, टाउनशिप वास्तुशास्त्र कंसल्टेशन करवानी है, अगर आपको लगता है
है कि यू नीड सम हेल्प इन वास्तुशास्त्र सर्वेज, मैप्स, ऑडिट एनालिसिस एंड करेक्शंस, अगर आप जानना चाहते हैं ट्रेडिशनल जो अप्रोच होते हैं या फिर साइंटिफिक अप्रोच जो होते हैं वास्तु की तरफ, उनके बारे में, तो फिर जरूर आप कांटेक्ट करिए रीवा कुमार के साथ। वी एक्चुअली हैविंग अ कॉलर, बट या आई थिंक दैट कॉल इज नाउ एंडेड, सो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए लिसनर। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं रेवा कुमार से, ऑफ कोर्स आप हमें कॉल कर सकते हैं। 5107701550 है हमारा स्टूडियो लाइन। पर मैं आपको बताऊं कि वास्तु इज such an ancient subject, especially for us Indians, कि हमें पता ही नहीं है कि ये जो बहुत ही अमेजिंग दिस वास्तुशास्त्र इज। तो इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए जरूर आप हमेशा ये शो सुने एवरी ट्यूसडे 10 to 10:30। वापस आते हैं रेवा जी, आपने बताया अबाउट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में कि वहां पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर बताए कि अगर किसी के घर में ऐसा है कि वो पैसे रखने का जगह बस नॉर्थ वेस्ट में ही है पर उसको चेंज नहीं कर सकते, तो क्या कुछ हम कर सकते, वहां पे कुछ रख सकते हैं ताकि ये जो दोष है वो उससे हमें छुटकारा मिले? जी हाँ, बिल्कुल रेनी, उसके लिए हम कर सकते हैं क्योंकि यही हमारी स्पेशलिटी है जहाँ पर हम कहीं भी रेनोवेशन या रीमॉडलिंग, या मैं कह नहीं सकती कि आप उन चीजों को, जगह को यूज नहीं कर सकते। वी कैन रेक्टिफाई इट बाय विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास में नॉर्थ वेस्ट की क्लोजेट एरिया है कि जिसमें हम नहीं रख सकते और कोई जगह नहीं है, तो आपको वहां के लिए साउथ वेस्ट कॉर्नर सिलेक्ट करना है। और साउथ वेस्ट कॉर्नर जब आप सिलेक्ट करेंगे, वहीं पर ही आप एक मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ, उसको पर्टिकुलर पिरामिड को अगर आप उस जगह पे लगाते हैं तो वो आपको स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि हमको वहां पे अपनी वैल्यूएबल्स रखनी है ग्रो करने के लिए, ना कि खोने के लिए, ना कि हमारा कहीं के अनवांटेड हमारे एक्सपेंडिचर्स पड़े। तो दैट कैन बी इजिली रेक्टिफाइड। और साथ ही साथ में मून प्लैनेट को इनहेंस करना है, क्योंकि मून प्लैनेट आपको, जैसे आपने कई बार देखा है कि रेनी, कई बार हमें क्लाइंट्स कॉल करते हैं, जब मैं विजिट करती हूँ तो पता चलता है कि जब मून बढ़ रहा होता है, जब इंक्रीजिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, जब हमारे को कह सकते हैं कि फुल मून के बाद का टाइम आता है 15 दिन, उस समय वो उनको इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस या प्रॉब्लम आती हैं, या जिस समय मून इंक्रीज हो रहा था कई बार तब उस समय भी आ जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है उनके डेट ऑफ बर्थ को चेक करना कि उनका ज़ोडिएक साइन का एलिमेंट क्या है। अगर सपोज कर लीजिए आपका ज़ोडिएक साइन एयर एलिमेंट है, आपका घर भी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, एयर एलिमेंट में हो गया, प्लस उसका जो प्लैनेट पोजीशन है मून प्लैनेट है, उनके जो डिफेक्ट्स होते हैं उसका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडवाइज कि मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, क्योंकि उसी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जब हम चार्ट बनाते हैं उसको वास्तु कुंडली के रिलेटेड, देन वी कम टू नो कि उसकी क्या प्लैनेटरी पोजीशन है, या वो प्लैनेट पर्टिकुलर उस घर के अंदर में या बिजनेस या वर्क प्लेस पे है कि नहीं है। उसको हम कैसे लेकर आए, उस एनर्जी को हम कैसे क्रिएट करें ताकि वो बैलेंस हो और उनका आपको फायदा हो। अब बहुत सिंपल सा मैं एक केस हिस्ट्री में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अब नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट जैसे कि मैंने बताया कि इतनी पावरफुल है, एयर एलिमेंट है, मून प्लैनेट है, खास करके जिनका देखते हैं कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, काफी मैरिज हो गया लेकिन अपनी फैमिली को एक्सटेंड नहीं कर रहे, मैरिज पीरियड काफी हो गया, या उनका बार बार मिसकैरेज होता है। तो लिसनर्स इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ यू वांट टू कंसीव योर चाइल्ड एंड देयर इज सम प्रॉब्लम, सम इश्यूज कंसीविंग द चाइल्ड, तो उसके लिए क्या है, नॉर्थ वेस्ट बेडरूम इज द परफेक्ट, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है और वो मून प्लैनेट से रिलेटेड है, जो आपको हेल्प करता है, आपकी लव लाइफ को काफी ज्यादा बेहतर करता है। अब आप ध्यान से देखें कि जब हमको फर्स्ट 3 मंथ हमारे को वहीं पे ही उसी बेडरूम की एनर्जी से फायदा लेना है। अब 3 अगर आप कंसीव कर जाते हैं, देन स्टिल 3 months यू हैव टू लिव इन दैट बेडरूम। आफ्टर कंसीविंग दैट चाइल्ड, देन द नेक्स्ट 3 months you have to switch off from that room towards the southwest. अब साउथ वेस्ट वो अर्थ एलिमेंट है, वो स्टेबिलिटी देगा। जहां पर देखते हैं कि मिसकैरेज हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वहां पर आपको फिर नॉर्थ वेस्ट में नहीं सोना है। आप कंसीव करने के बाद में आप सीधा साउथ वेस्ट में आ जाइए, ना आपको साउथ ईस्ट में सोना है, ना आपको फिर नॉर्थ वेस्ट में सोना है। तब तक 6 to 7 months तक, जब तक बेबी का पूरा ग्रो हो जाता है, सब कोई नहीं रहती,
देन द लास्ट 1.5 month और 2 months आपको कहाँ शिफ्ट करना है? नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलनी है आपको, जहाँ पर आप बिल्कुल डिलीवरी आपका अच्छा हो जाए, मदर को चाइल्ड को कोई इश्यू नहीं आए। लेकिन इस तरफ में आपको फिर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी से रिलेटेड नहीं देना। ओनली टू कंसीव अ चाइल्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट, लेकिन उसके बाद में आपको बेडरूम की स्विच अपनी जगह बदल देनी है। बहुत पाया जाता है कि जो लोग नॉर्थ वेस्ट में कंसीव करने के बाद में उसी जगह पे रहते हैं या साउथ ईस्ट बेडरूम में सोते हैं, तो वहां पर मिसकैरेज शुरू कहा जाता है या कहीं ना कहीं डिलीवरी के टाइम पे इश्यूज आते हैं। इवन कि नॉर्थ ईस्ट तक आपको 7 to 8 months तक भी नहीं सोना। तो एवरी डायरेक्शन इज हैविंग देयर ओन इम्पैक्ट कि आपके ऊपर में वो आपको क्या फायदा देंगे या क्या नुकसान देंगे। वेल, मुझे तो लगता है कि ये जो एक टॉपिक है, इस पे एक शो नहीं, हमें कई शोज करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये सारी की सारी चीजें होते हैं। एंड वी कैन एक्चुअली रेक्टिफाई दैट विदाउट रीमॉडलिंग, विदाउट ब्रेकिंग डाउन द हाउस। ये सबसे अच्छी बात है एक्चुअली रेवा जी, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे कि वास्तु के अगर कोई भी डिफेक्ट्स है तो फिर यू हैव टू रीमॉडल द एंटायर हाउस, पर आपने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो this piece of knowledge is so important for all the listeners, I believe, कि yes listeners, अगर आप भी सोचते हैं कि you might have some problems in your house, वो नॉर्थ वेस्ट दिशा हो या फिर कोई भी दिशा के लिए, कोई भी you are feeling, you are not feeling good, you are feeling very stressed, you are not having growth in your career, your kids are not just doing good in studies, for each and everything, अगर आपको लगता है कि there might be something related to वास्तु, तो फिर do not hold yourself back. Just fix in consultation with Reva Kumar. Number एक बार फिर से खास आपके लिए 5108683338. You can always check worldofdivinevastu.com for more information. Reva Kumar is the founder of Divine Vastu Consultation and Research Center, which is now very well known as World of Divine Vastu. 1987 में रेवा जी ने ये जो World of Divine Vastu है ये conceptualize की थी, and now it's going यहाँ से वहाँ तक worldwide, like a lot of followers she has, and she has been giving remedies to all of them. Well, हमारे पास बस 3 ही मिनट है और रेवा जी आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स देती है, तो फिर प्लीज शेयर सम टिप्स विद ऑल आवर वंडरफुल लिसनर्स। बिल्कुल मैं टिप देना चाहूंगी भी लिसनर्स को रेडियो जिंदगी की टीम की तरफ से, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से दुशहरा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दुशहरा की कहते हैं ना कि जिसने बुराई के ऊपर में जीत पाई थी, उस अच्छाई ने जीत। देखा जाए तो रावण भी बहुत 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 ही ज्ञानी थे, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि हमारा अहंकार ही हमको डूब लेता है और नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे अपने सभी लिसनर्स को कि ये स्टिल यू कैन रन, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, वही आपको फल मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ मैसेज नहीं दे पाएंगे। लेकिन खास से जो आ रही है अक्टूबर 9 को, दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस फुल मून एंड दैट इज अ शरद पूर्णिमा। इस नॉर्थ वेस्ट के लिए अगर आप कहीं पे भी सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या बेवजह आपको हेल्थ इश्यूज है या डिप्रेशन है या इमोशनली आप अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, उन सभी लिसनर्स के लिए ये टिप बहुत 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 फायदा है। इस फुल मून को, जो कि साल का सबसे बड़ा मून माना जाता है, जिसको हम लोग शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं, इस मून के लिए आपको क्या करना है, संडे को फुल मून के दिन में, पूर्णिमा के दिन में आपको राइस पुडिंग बनानी है, खीर बनानी है दूध और चावल की। बनाने के बाद में शाम को खीर को किसी भी पतले नेट के कपड़े के साथ में या किसी भी नेट के अंदर रखें, अपने घर के फ्रंट या बैक यार्ड में जहां पे आप देखते हैं कि फुल मून लाइट की पूरी रोशनी आती है, लेट इट बी आउटसाइड। रात भर उस खीर को पूरा बाहर रहने दीजिए, ढका रहने दीजिए, ताकि मून लाइट की पूरी एनर्जी उसके अंदर में आए, उसमें वाइब्स आए। और अगले दिन मंडे मॉर्निंग को आप उसको थोड़ा सा भगवान को ऑफर करके वो खीर आप खुद घर खाइए। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, दिस इज ट्रू, दिस इज माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। जहाँ पर इमोशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए ये खीर बहुत बहुत हेल्पफुल है, या जहाँ पर हेल्थ इश्यूज आते हो
कि कोई ठीक नहीं हो रहा, उनको आप ये थोड़ा सा खीर का प्रसाद जरूर खिलाइए, ये बहुत ही पावरफुल होती है। तो शरद पूर्णिमा की भी हमारे सभी लिसनर्स को, आपकी फैमिलीज को बहुत बहुत बधाई हो। डोंट फॉरगेट, इस खीर को बनाकर चांदनी रात में रखिए, और उसी की, जैसे कहते हैं कि उस दिन शरद पूर्णिमा की एक रात एक ऐसी रात होती है जहां पर पूरा प्यार, जहां पूरी मिठास बरसती है उस आसमान से, उस बैंकुट से। तो आप उस एनर्जी को लीजिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप मेडिटेट कर सकें फुल मून की रात को, मून की तरफ देखते हुए, एंड देन यू फील, बी पॉजिटिव, जस्ट फैसिनेट योरसेल्फ दैट यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स। आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, आपकी सब परेशानियां खत्म हो गई हैं, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको पूरी सोशल सपोर्ट मिल रही है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही उस समय आपको फायदा होगा। एंड थैंकफुल टू दिस डिवाइन यूनिवर्स टू गेट दिस ब्लेसिंग्स। दैट इज वंडरफुल। और इसी के साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच रीवा जी फॉर ऑल दिस अमेजिंग टिप्स। मुझे पता है कि इस टाइम पे दिस टाइम ऑफ द ईयर जब हम सोचते हैं कि दिस इज द फेस्टिवल सीजन एंड वी वांट टू मेक आवर लाइव्स बेटर, दीज टिप्स आर अमेजिंग। और लिसनर्स, मैं आपको बताऊं कि अगर आप रीवा जी के साथ पर्सनल कंसल्टेशन फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर एक बार फिर से 5108683338 जरूर चेक करें। वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। थैंक यू सो मच रीवा जी फॉर योर टाइम। थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू रेनी, जय माता दी। ऑल राइट, तो ये थी हमारे साथ रीवा कुमार। यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग टी विथ रीवा कुमार। आज के लिए बस इतना ही, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM और हमेशा की तरह खुद से कहते रहिए, जिए जा। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.